Assalamualaikum students, hope you all are fine and healthy at your homes. So today our lecture number 5 and our topic is how to solve worksheet. मैं आपको इसमें worksheet show करूँगी. So yeah, here is our worksheet. So question number 1 है, ये हमारी revision worksheet है students social studies की. ठीक है, हमारा question number 1 है और fill in the blanks है इसमें. Now first fill in the blank है हमारे पास there are dash main wind system in South Asia. How many wind system आपने यहाँ पे लिख देना है. Second है dash receives less amount of rainfall from the dash monsoon. Arabia was a dash desert. The dash was built by dash and his son Hazrat Ismail alayhi salam. Akbar was born in dash at dash in Sindh. The war of independence began in air dash and came to an end in dash. The Grand Trunk Road was built by dash. Babur defeated dash in the Battle of Panipat. The Mughal Empire was at its largest under dash. The greatest Muslim empire in the subcontinent began under the Mughals in dash. So students, ये सारी fill in the blanks हैं, इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे. So yeah, here is our question number 1 part B. हमारा part B है question number 1 का. Choose the correct answer. Number 1 है Holy Prophet peace be upon him was born in dash. आपके पास options हैं 540 century, 550 century, 560 century and 570 century. Next है Turkey and Iran and Iraq receive rain from the dash. Western depression, northeasterly, southwest monsoon, northwestern depression. Third है आपके पास Tipu Sultan was the first who used dash in warfare. Options हैं आपके पास rocket, grenade, guns, bullets. Fourth है आपके पास dash was the last year of Quranic revelation. Options हैं आपके पास 570 century, 632 century, 610 century, 622 century. Fifth है Pakistan receives a dash amount of rainfall. Options हैं आपके पास large, big, high, small. Sixth है आपके पास dash was the good and wise god of the Zoroastrians. Options हैं आपके पास Ahriman, Jehovah, Brahma, Ahura Mazda. Next है आपके पास Hyder Ali became the ruler of dash in 1761. Options हैं आपके पास Mysore, Arcot, Mangalore, Seringapatam. Next है आपके पास 8 dash introduced a new faith called Deen-e-Ilahi. Jahangir, Shahjahan, Akbar and Babur. 9th है आपके पास Hyder Ali died in dash 1781, 1782, 1783 and 1784. 10th है आपके पास dash were the Eastern Orthodox Christians, Aryans, Huns, Turks, Byzantine. इसके भी आंसर आपको आपकी बुक में से इजीली मिल जाएंगे. आपके जर्नल में भी आपका सारा काम हुआ हुआ है. उसके अलावा आपको जो हैंड आउट दिए गए हैं उसमें भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे. आप अपनी बुक पढ़ोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको ईजिली सबके आंसर्स मिल जाएंगे. Now come to our question number 1 part C. True or false? Shahjahan built Taj Mahal. Is it true or false? Akbar was not very ambitious and politically clever ruler. Grand Trunk Road connected Multan to Lahore. The War of Independence was begun in 1940. The Byzantines were Eastern Orthodox Christian. Question number 2 है हमारे पास Make the list of the countries in each climatic region. Polar, temperate, arid, tropical, Mediterranean. ये आपकी एक्टिविटी आपके जर्नल में भी करवाई हुई है इन चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया.
जैसे कि उसमें आपने कंट्रीज़ के नेम लिखे थे कि कौन से क्लाइमेटिक रीजन में कौन से कंट्रीज़ आते हैं, इसी तरह आपने यहाँ करना है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैच द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम द गिवन जोन्स। कॉलम ए है और कॉलम बी है। 0 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री सेल्सियस हॉट, 21 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस कोल्ड, बिलो 0 डिग्री, माइल्ड 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस कूल। इनको आपने मैच करना है स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी इस तरह का आपकी बुक में भी दिया हुआ है इन चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया। आप उस बुक को ओपन करोगे, इस एक्टिविटी को देखोगे, आपको नज़र आ जाएगा, देन आप इसको ईज़िली मैच कर सकते हो। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स विद नंबरिंग के साथ आपने ये लिखना है कि कौन से ईयर्स जो है क्या चीज़ पहले हुई। जैसे कि हमारे पास पार्ट ए में दिया हुआ है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पास्ड अवे, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रोक्लेम्ड हिज प्रॉफिटहुड विद डिवाइन रेवलेशन, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बॉर्न। इसको आपने नंबरिंग के साथ बताना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है आपके पास, राइट द ईयर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। ये आपको आपकी जर्नल में करवाई हुई है। उसके अलावा जिन बच्चों का ये काम नहीं हुआ है तो हैंड आउट्स में ये चीज़ आपकी मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ तो ये एक्टिविटी जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए जो है, जिसमें आपको बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर एंड जहांगीर, ये एक्टिविटी आपको आपके हैंडआउट्स में भी दी गई है और कुछ बच्चों का जो है ये काम हो चुका है तो उनको पता होगा ये एक्टिविटी उनकी क्लासेस में करवाई भी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, मेक द टाइमलाइन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंशन इवेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर्स। इन ईयर्स के आपको इवेंट्स लिखने हैं कि इन ईयर्स में क्या क्या इवेंट्स हुए थे। 1780 till 84, 1790, 1857, 570 सेंचुरी, 610 सेंचुरी, 622 सेंचुरी, 632 सेंचुरी एंड 1555। ये सारे ईयर्स में कोई ना कोई इवेंट्स हैं। आप अपनी बुक पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इन ईयर्स में क्या क्या इवेंट्स हुए थे। आप अपनी बुक में इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द ईयर्स इन विच दीज वॉर्स वर फाउट। द रोहिलास, द मराठास, द मैसूर वॉर्स, द गुरखाज। ये आपकी एक्टिविटी जो है आपकी बुक में मौजूद है। आप चैप्टर खोलोगे और उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि इन वॉर्स के आगे इनके एयर्स दिए हुए हैं कि ये वॉर्स किन एयर्स में हुई थी। उसके अलावा इसका जब एक्सप्लेनेशन हुई थी लेक्चर में तो आपको बताया भी गया था लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द ग्लॉसरी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1 कोलैप्स, डिफीट, ट्रीटरी, इम्पोज, एट्रोसिटीज़, क्रिमिनल, कॉन्क्वेस्ट, डिसमिस, डोमिनेट, एक्सेशन। ये सब आपके जर्नल में मौजूद हैं और हैंडआउट में भी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग ओएसिस, रेवलेशन, स्विप, मॉनसून, एम्पायर, हेमिस्फेयर। ये सारी डेफिनेशंस हैं। आपको डेफिनेशंस आपको जर्नल में मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको आपकी डेफिनेशंस हैंडआउट्स जो दिए हैं उसमें मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर्स देने हैं आपको स्टूडेंट्स। आपको ये आपकी बुक में से मिल जाएंगे, आपके जर्नल्स में से मिल जाएंगे और आपके हैंडआउट में से आपको इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर द फॉलोइंग। इसके आंसर्स भी आपको आपके जर्नल्स में करवाए हुए हैं और आपके हैंडआउट्स में इसके आंसर्स दिए गए हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। इसका आपने शॉर्ट नोट करना है इन जर्नल। सो स्टूडेंट्स ये काम जहाँ पे आपका हैंडआउट का हुआ ख़त्म हुआ है, आप हैंडआउट का काम कर रहे होंगे। आपका हैंडआउट का काम जहाँ पे ख़त्म हो गया है
वो हैंड आउट का काम आपने सारा अपने जर्नल्स में कर लेना है स्टूडेंट। जो आपके जर्नल है उसमें आप सारा हैंड आउट का काम कर लोगे। आफ्टर दैट आपने रिवीजन वर्कशीट का टाइटल बनाना है। रिवीजन वर्कशीट का टाइटल बनाओगे और उसके दूसरे पेज पे, सामने ही पेज पे आप वर्कशीट स्टैपल कर लोगे या फिर पेस्ट कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर आप वहाँ पे वर्कशीट सॉल्व करोगे। ओके तो फिर उसके बाद आप अपनी पूरी वर्कशीट जो है वो जर्नल में सॉल्व करोगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो है फाइनल टर्म का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपके जो फाइनल टर्म में 4 चैप्टर्स इंक्लूड थे। क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया, द बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, द मुगल्स, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये सब आपको लेक्चर में भी पढ़ा दिए गए हैं जो रह गए थे रिमेनिंग, और बाकी आपको जब क्लासेस स्टार्ट थी तब करवा दिया गया था। नाउ स्टूडेंट्स, आपको रिवीजन वर्कशीट भी समझा दी गई है कि आपको किस तरह से करनी है। होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने जर्नल, बुक्स, अपने हैंड आउट्स जो आपको दिए गए हैं और इस वर्कशीट के थ्रू आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी करें स्टूडेंट्स। नाउ टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।